I am initiating the discussion on the three exams, Olympiad, NTSC and KVP, right? What I feel in student life, these three exams are really very, very important. In fact, if a student appears in all the three exams with a reasonable preparation, he or she is bound to do well at the entrance level. Entrance level means entrance for IIT JEE, AIIMS, NEET, CLAT, and some other competitions which are usually conducted after plus 2. All right. Now, a natural question comes to your mind, how the preparation for these exams is helpful in getting through the entrance exam. I will come to these exams one by one. I am starting with the Olympiad. First of all, when I say Olympiad, Olympiad means the Olympiad conducted by Homi Bhabha Center of Science Education, Bombay. No other Olympiad. When a student prepares for this Olympiad to be conducted by Homi Bhabha Center of Science Education, his thinking ability improves. His horizon of thinking becomes wider. And you must have heard about a quote of Einstein, what Einstein said about education. He said, education is not the mere learning of facts. It is the training of mind to think. वो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है ओलंपियाड से, और जैसे जैसे थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी बच्चे की, द कंसंट्रेशन लेवल ऑफ द चाइल्ड इज गोइंग टू इंप्रूव, और जैसे जैसे कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा उसका आउटपुट एट द एंट्रेंस लेवल बढ़ेगा. एवरी पर्सन नोज कंसंट्रेशन से जुड़ा हुआ है उसका सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन. राइट. नाउ आई एम कमिंग टू द सेकेंड एग्जाम, दैट इज NTSC. अब NTSC मीन्स नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम कंडक्टेड बाय NCERT Delhi. No other talent search exam. When a student prepares for this competition, his overall knowledge improves. Not only the knowledge improves with depth. Means his knowledge no longer remains superficial. In fact, it acquires one more dimension, that is depth. So knowledge with depth आ गई उसके पास. अब knowledge with depth से होगा क्या? The comprehending ability of the child improves. और अगर comprehending ability improve हो गई, that is really helpful in getting through any entrance exam. Right? अब हम आ जाते हैं थर्ड पे, KVPY. KVPY means किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना. Right? This exam is conducted by IISc Bangalore, Indian Institute of Sciences, Bangalore. All right. When a student prepares for this exam, his visualizing ability improves. As the visualizing ability improves, problem solving ability improves. When the problem solving ability improves, his passion for sciences improves. And once a person becomes passionate, he is bound to succeed in life. So success comes. ये तो हो गया when a student prepares, तो उससे
इन एग्जाम्स में क्या बेनिफिट होगा? सिर्फ उससे ही बेनिफिट नहीं होता। व्हेन ए स्टूडेंट अपीयर्स इन दीज एग्जाम्स, ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपी, इन एग्जाम्स में जब बच्चा अपीयर होता है, अब बच्चा अपीयर हुआ तो उसको इन टेस्ट को एंजॉय करना है। कई बार हमारे दिमाग में आता है यार क्वेश्चन तो निकल नहीं रहे, क्या एंजॉय करना? नहीं, तो क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, किस से पूछे हैं। पेपर में भी, क्योंकि ये पेपर बना बॉम्बे से, ये पेपर एनसीईआरटी से आया, ये पेपर कहां से आया? आपका आईआईएससी बैंगलोर से। ये पेपर्स किन प्रोफेसर ने बनाए? टॉप प्रोफेसर ऑफ द कंट्री ने। इन पेपर्स को अगर बच्चा एंजॉय करेगा, ठीक है, तभी तो उसका थिंकिंग प्रोसेस बेटर बनेगा। उसको ये भी होगा, ये भी लर्न करना है। इस वे में पढ़ता, आई कुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो लर्निंग मेथड्स ऑफ द चाइल्ड इंप्रूव, एंड वंस द लर्निंग मेथड्स ऑफ द चाइल्ड इंप्रूव, ही इज बाउंड टू डू वेल एट द एंट्रेंस लेवल। चाहे वो आईआईटी का एग्जाम हो, चाहे एम्स का हो, चाहे आपका नीट हो, चाहे वो आपका क्लैट हो, चाहे कोई और एग्जाम हो। ऑल राइट, तो अभी तक मैंने फर्स्ट चीज ये बताई है कि हाउ दीज एग्जाम्स आर हेल्पफुल इन गेटिंग थ्रू द एंट्रेंस एग्जाम आफ्टर प्लस टू। बट अब आपके मन में और क्वेश्चंस आ रहे होंगे, इनका सिलेबस क्या है, बच्चे को कब से स्टार्ट करनी चाहिए प्रिपरेशन, प्रिपरेशन करनी कैसे चाहिए, ऑल दीज क्वेश्चंस कमिंग टू योर माइंड। चलिए मैं इन ब्रीफ आपको इन क्वेश्चन के आंसर दे देता हूं। सबसे पहले मैं आंसर दूंगा ओलंपियाड का। एज आई टोल्ड यू, जब मैं ओलंपियाड की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओलंपियाड विच इज कंडक्टेड बाय होमी भाभा सेंटर ऑफ साइंस एजुकेशन, बॉम्बे। नो अदर ओलंपियाड। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ओलंपियाड्स इन इंडिया। Most of the Olympiads, other Olympiads, are conducted by the coaching institute. Purpose क्या है उनको conduct करने का? To get data of good students. When they get data of good students, they are going to attract them in one form or the other. So after attracting them, they are going to use them as a product in the market. चलिए मैं उन Olympiads की बात नहीं कर रहा हूँ, right? अब आ गए हम इस ओलंपियाड के ऊपर। इस ओलंपियाड में सबसे पहले आपको स्टेजेस पता होनी चाहिए। भाई सबसे पहली स्टेज है प्री रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, PRMO, प्री रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, PRMO। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, नियर अबाउट 30 क्वेश्चंस इन 150 मिनट्स। They usually give 5 questions, 5 minutes for one question. All right. चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद प्री आरएमओ के लेवल के बाद आया आरएमओ, रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। यहां नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाएंगे। फिर आ गया इनमो, यहां और कम हो जाएंगे। इनमो का मतलब इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। फिर इसके बाद आगे चलें, इसके बाद होता है कैंप। जो इनमो के सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, उनके टॉप स्टूडेंट के लिए कैंप होगा बॉम्बे, ठीक है। वहां पे प्रोफेसर आएंगे TIFR से, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, बेस्ट प्रोफेसर इन द कंट्री। उससे बच्चे को सीखने का मौका मिलेगा, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर बच्चा कैंप में टॉप 6 में रहेगा, he or she will get a chance to represent the country in the International Mathematical Olympiad. ये ओलंपियाड बिल्कुल उसी लाइंस पे हैं जैसे ओलंपिक्स है। आपको बताइए ना, ओलंपिक्स में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज क्या वैल्यू है जब इस पर्सन लेके आता है, वैसे ही वैल्यू है इन मेडल्स की इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एक्सेट्रा। ऑल राइट, तो आप अपने कंट्री के लिए गोल्ड मेडल ला सकते हैं इन द ओलंपिक्स, बट दीज ओलंपिक्स आर कॉल्ड ओलंपियाड्स। ऑल राइट, अब आप कहेंगे इसका सिलेबस क्या है? सिलेबस पे आ जाएं।
भाई देर इज नो फिक्स सिलेबस. यूजुअली दे आस्क क्वेश्चंस. कहां से आते हैं? 9th and 10th का पहला चैप्टर नंबर थ्योरी, और 9th and 10th पॉलिनोमियल्स सेकेंड चैप्टर, 9th and 10th इक्वेशंस, राइट. 9th and 10th यूक्लिडियन ज्योमेट्री, 9th and 10th mensuration only up to pre-RMO level. mensuration के क्वेश्चन pre-RMO लेवल तक आते हैं, उसके आगे, राइट. इसके बाद कुछ और भी टॉपिक्स हैं. इनइक्वालिटीज 9th and 11th. इसके बाद और भी टॉपिक्स हैं. सीक्वेंसेस एंड सीरीज 10th and 11th. फिर और टॉपिक भी है कॉम्बिनेटोरिक्स. पता है कॉम्बिनेटोरिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. हाउ टू काउंट विदाउट एक्चुअली काउंटिंग दैम. तो ये टॉपिक है +1 कोर्स. तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर फ्रॉम 9th and 10th कोर्स, जस्ट 1 or 2 टॉपिक्स फ्रॉम +1 कोर्स, राइट. ये हो गया इसका सिलेबस. कहां से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है. अब सिलेबस पता लग गया. अब आता है दिमाग में कब बच्चा प्रिपेयर करे. देखिए स्पेड वर्क कर सकता है 9th में, बट एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट होनी चाहिए 10th में. अब आप कहेंगे 9th में क्यों नहीं? इवन 8 से करा देते हैं ओलंपियाड, इवन 6 से करा देते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट करा रहे हैं. देखिए आप बहुत जल्दी चलेंगे तो बर्नआउट कैंडिडेट्स होंगे 99.9. योर चाइल्ड में भी वन ऑफ द. वो बर्नआउट ना हो. क्यों? अगर हम उसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड जाके काम करते हैं, बच्चा धीरे धीरे चीजें ग्रास्प करता है, फिर उनको लगाता है. अगर हम उस कैपेसिटी के बियॉन्ड जा रहे हैं, दैट मे इफेक्ट द चाइल्ड ड्रास्टिकली, राइट. तो 9th में बिल्कुल नहीं, 10th से ओलंपियाड की प्रिपरेशन स्टार्ट होनी चाहिए. एक बार बच्चा इस टेस्ट को अपीयर करेगा 10th में, and the second time the child is going to appear the same test in 11th. In 11th usually he got the better chance. हमारे पास 2-3 बच्चे RMO लेवल तक चले जाते हैं 10th से, बट मेनली जो स्टूडेंट आगे तक जाते हैं वो +1 के ही होते हैं, क्योंकि देयर आर सम टॉपिक्स एंड द मैच्योरिटी लेवल ऑफ द स्टूडेंट इज देयर एट दैट टाइम. तो बच्चे को 10th में भी देना चाहिए, 11th में भी देना चाहिए, बट शुड नॉट स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन क्लास 6, 7, 8. चलिए इसके आगे हम चलते हैं. अब आपको पता लग गया कि बच्चे को ये टेस्ट कब देना चाहिए. अब हाउ द चाइल्ड विल प्रिपेयर, कहां से प्रिपेयर करें, क्वेश्चन कहां से मिलेंगे. देखिए आपकी एनसीईआरटी बुक्स बहुत अच्छी है. 10th की एनसीईआरटी बुक्स में ऑप्शनल एक्सरसाइजेज आर देयर. 9th and 10th में ऑप्शनल एक्सरसाइजेज आर देयर. उन ऑप्शनल क्वेश्चंस का लेवल ही आपकी ओलंपियाड लेवल है. बिगिनिंग ऑफ ओलंपियाड लेवल कम्स फ्रॉम ऑप्शनल क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी. हम ऑप्शनल का नाम देख के ही जोड़ देते हैं, ये तो ऑप्शनल है. In fact, that improves your thinking ability, right? चलिए उसके बाद क्या पढ़ेंगे. उसके बाद एक बुक आ जाती है मैथमेटिकल सर्कल्स, एक रशियन बुक है. अगेन इट्स इजीली अवेलेबल, अमेजन या फ्लिपकार्ट वगैरह से मिल जाएगी, ठीक है. और उसके बाद एक और बुक आ जाती है चैलेंजेस एंड थ्रिल्स इन प्री कॉलेज मैथमेटिक्स. फिर इसके बाद कुछ और बुक्स भी आ जाती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह पे, ठीक है. तो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल विद द बुक्स, क्योंकि ये धीरे धीरे प्रोसेस है. बच्चा चला तो ये बताया, इतना कर लो, फिर ये बताया. अगर आप सारा बच्चे को कहेंगे तो ये भी करना, ये भी करना, कैसे करूंगा मैं, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड. तो मैंने अब आपको आंसर दे दिया क्या सिलेबस है, व्हेन द चाइल्ड शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, एंड फाइनली हाउ ही शुड प्रिपेयर. बट एक एश्योरेंस दे रहा हूं, इफ
a student appears in Olympiad, his thinking ability will improve. Once horizon of thinking becomes wide, तो उसका जो concentration level है वो काफी बढ़ जाता है. And that is really helpful at the entrance level, as I told you in the beginning. अब मैं आ जाता हूं आपके सेकंड जो एग्जाम है उस पर, NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, टू बी कंडक्टेड बाय NCERT दिल्ली. ठीक है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है. ठीक है, अब ये जो NCERT वाला आया आपका, राइट, तो NCERT के लिए सबसे पहली चीज आपको ये भी देखना पड़ेगा, देयर आर नंबर ऑफ टैलेंट सर्च एग्जाम. भाई आपने कौन सा देना है? ओनली NCERT. ठीक है, बाकी कोई एग्जाम नहीं देना, उनका पर्पस ही अलग होता है एग्जाम का. राइट, चलिए अब इसमें दो स्टेजेस होंगी एग्जाम में. सबसे पहली होगी स्टेट लेवल, STSE स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम. जो इसको क्वालिफाई करेगा वो स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा नेशनल लेवल पे, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम. तो STSE एंड NTSE आर द टू स्टेजेस. ठीक है, दोनों क्वालिफाई करेगा, देन ओनली द चाइल्ड कैन गेट द स्कॉलरशिप एट द ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल. ऑफकोर्स ये प्री PhD स्कॉलरशिप होती हैं, क्योंकि PhD में जो स्कॉलरशिप है वो UGC ग्रांट करता है. ऑल राइट, चलिए, तो ये तो हुआ इसकी स्टेजेस के बारे में. अब इन दोनों ही स्टेजेस में दो दो पेपर होते हैं, चाहे आप फर्स्ट स्टेज लेने STSE चाहे NTSE. पहले में मेंटल एबिलिटी आएगी और दूसरे पेपर में आएगी स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट. अब मेंटल एबिलिटी, students usually mess up the preparation for NTSC. They go with the tuitions of mental ability. अब आप बताइए, नाम है mental ability, it's an intrinsic ability of the person, और बच्चा जा रहा है ट्यूशन के लिए ऑफ मेंटल एबिलिटी. क्या वो चीज हेल्पफुल होगी? बिल्कुल नहीं. इनफैक्ट जो थिंकिंग थी बच्चे की, पहले वाइडर बनाई, फिर वो दोबारा से नैरोअर बन जाएगी. तुम कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चा ट्यूशन पे जा रहा है, वहां क्वेश्चन कर रहा है, नैरोअर थिंकिंग कैसे हो गई? देखिए, ट्यूशन में पढ़ाएंगे कैसे? इस टाइप के क्वेश्चन की हैंडलिंग ऐसे होगी, इस टाइप के क्वेश्चन की हैंडलिंग ऐसे होगी, ऐसा आएगा तो ऐसा करना है, ऐसा आएगा तो ऐसा करना है. इंडिपेंडेंटली नहीं सोचता. तो नेचुरल है ऐसी रेस्ट्रिक्टिव थिंकिंग से जो बच्चे की थिंकिंग का होराइजन है वो नैरोअर हो जाएगा. और वंस थिंकिंग का होराइजन है नैरोअर हुआ तो उसकी जो कंसेप्चुअल डेप्थ है, ठीक है, नॉलेज तो वो एक्वायर करेगा. वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी नॉलेज एक्वायर करता है, बट वो विद डेप्थ नहीं करेगा, वो डेप्थ मिसिंग हो जाएगी. It will become superficial knowledge. तो मेंटल एबिलिटी की पर्टिकुलरली ट्यूशन लगाने का सबसे ज्यादा नुकसान. अब यहाँ पे पेरेंट्स के मन में आ रहा होगा, देखो बच्चे को तो ये पता ही नहीं कौन से क्वेश्चन आएंगे, बच्चे को क्या पता टेस्ट में क्या आना है. अगर उसको यही नहीं पता टेस्ट में बैठ के क्या करेगा वो? तो चलो बात तो ठीक है. इसके लिए स्टूडेंट नीड सम प्रैक्टिस तो दैट उनको पता लग जाए पेपर पे क्या आना है मेंटल एबिलिटी. तो उसके लिए बुक्स अवेलेबल होती हैं, उनको पढ़ना नहीं है, सिर्फ करना है. उनके मेथड्स नहीं पढ़ने, क्वेश्चंस को डायरेक्टली करना है. चाइल्ड कैन सॉल्व ऑफ देयर ओन, वो इंट्रिंसिक है. बच्चा जेनेटिकली स्ट्रांग है और वो बच्चा कर सकता है क्वेश्चन को, तो उसके लिए किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है. एंड कुछ टेस्ट दे दे NTSC के लिए मेंटल एबिलिटी के, बस प्रिपरेशन हो जाएगी.
अब दूसरा जो है वो है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इस स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट में सब्जेक्ट्स आएंगे, मैथ्स भी आएगा, साइंसेस भी आएंगी, सोशल साइंसेस भी आएंगी। इनफैक्ट वेटेज साइंस और सोशल साइंस का बराबर होता है, पर्टिकुलरली इन एनटीएससी। तो अब बच्चे ने तैयारी करनी है, अब फिर ट्यूशन इज द सोल्यूशन। बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग मोस्ट ऑफ द टाइम, ट्यूशन लगाओ और पढ़ डालो। नहीं, मेरे हिसाब से यहां भी ट्यूशन की जरूरत नहीं। ट्यूशन हेल्पफुल नहीं होगी। इनफैक्ट उसको करना क्या है, उसको एनसीईआरटी बुक्स थॉरोली पढ़नी है। अब एनसीईआरटी बुक्स में काफी कंसाइज वे में लिखा हुआ है, पढ़ने में दिक्कत आती है, लाइन समझ नहीं आती, उसको समझने में टाइम लगता है। हाँ, एनसीईआरटी बुक्स के साथ साथ बच्चे को आईसीएसई की, सीबीएसई बुक्स के साथ साथ बच्चे को आईसीएसई की बुक्स भी पढ़नी चाहिए। वी हैव सफिशिएंट टाइम, रीडिंग हैबिट उनकी बनेगी तो वो एनसीईआरटी बुक्स के साथ साथ आईसीएसई की बुक्स भी पढ़ेंगे, और बुक्स पढ़ने से ही उनकी कंसेप्चुअल डेप्थ बनेगी और उनकी एबिलिटी इंप्रूव होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे की कंसेप्चुअल डेप्थ बने, कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी बढ़े, क्लियर द एंट्रेंस, डोंट गो फॉर द ट्यूशन, पर्टिकुलरली फॉर सेकेंड एनटीएससी एग्जाम। क्योंकि फर्स्ट में तो वो क्वेश्चन दे देगा टीचर, 15 मिनट बैठा हुआ है, आप सोचते रहो, कुछ नहीं कहेगा। यहां पे वो पढ़ाएगा, एंड दैट टीचिंग इज हार्मफुल। चलिए, इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट कंपटीशन आ गया आपका, वो आ गया किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना, KVPY। As I told you, this test is conducted by Indian Institute of Sciences, Bangalore, IISc। इंडिया के 2 रिसर्च इंस्टीट्यूशन काफी अच्छे हैं, PIFR बॉम्बे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, बैंगलोर। IISc इनका टेस्ट कंडक्ट कर रही है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, मेरी एक चीज मिस हो गई शायद, एनटीएससी का जो एग्जाम है बच्चा सिर्फ 10th में दे सकता है, और अगर बच्चे ने प्रिपरेशन करनी है, बच्चा 9th से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है एनटीएससी 9th क्लास। क्यों? स्कॉलस्टिक वाले जो सब्जेक्ट्स आएंगे पेपर में, वो 9th से सारा कुछ आएगा, तो 9th 10th बच्चे को अच्छे से आना चाहिए। तो रीडिंग हैबिट 9th से बनेगी तो बच्चा एनटीएससी एग्जाम में अपने आप अच्छा परफॉर्म करेगा। ये पॉइंट रह गया था, व्हेन ए स्टूडेंट शुड स्टार्ट, और चांसेस क्या मिलेगा, तो 9th 10th में बच्चा एनटीएससी की तैयारी करेगा, जबकि ओलंपियाड की तैयारी हो रही है 10th 11th में। इसके बाद चलते हैं, आते हैं तीसरे एग्जाम पे, बता ही दिया किसने कंडक्ट करना है। ऑफ कोर्स KVPY के नाम से और कुछ भी नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं है। KVPY आप डालिए, गूगल पे सर्च कीजिए, आपको सारा कुछ पता लग जाएगा, राइट। मैंने बता दिया, एग्जाम टू बी कंडक्टेड बाय दैट। अब ये जो एग्जाम है 11th में भी होता है, 12th में भी होता है। बच्चा 11th में भी एग्जाम दे सकता है, 12th में भी, पर दोनों एग्जाम्स अलग अलग होते हैं। 11th का पेपर अलग होगा, 12th का पेपर अलग होगा। अब 11th में, अब जैसे मैथ्स की बात करूं, 9th 10th का मैथ्स होगा, इसमें 11th के कुछ टॉपिक्स होंगे, सारे नहीं पर कुछ टॉपिक्स इंक्लूड होंगे। तो आप कह लीजिए 9th 10th 11th का कोर्स होगा, राइट। और जो 12th में एग्जाम होगा उसमें 11th और 12th के टॉपिक्स आएंगे, ऑल राइट। ऑफ कोर्स दोस टॉपिक्स कैन आल्सो यूज कॉन्सेप्ट फ्रॉम 9th एंड 10th, वो हमेशा रहता है, फाउंडेशन वहीं से ही है 9th से। तो 9th से अगर बच्चे का कोर्स अच्छे से आता है, दैट इज रियली बेनिफिशियल फॉर द चाइल्ड। चलिए चले आगे। अब ये तो हो गए 2 एग्जाम्स। ये जो एग्जाम होता है, इसमें पेपर में सारे सब्जेक्ट्स होंगे, मैथ्स भी होगा, फिजिक्स भी होगा,
केमिस्ट्री भी होगा, बायो भी होगी। अब 12th में आके इसमें चॉइस होती है कि आपने कौन सा लेना है, उसके हिसाब से आप चल सकते। चॉइस इज अगेन देयर कि आप नॉन मेडिकल स्ट्रीम के हैं तो आप दूसरा ले लीजिए, मेडिकल के हैं तो आप दूसरा सब्जेक्ट प्रेफर कर लीजिए, सो दैट योर स्कोरिंग इज गुड एनफ। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब इसकी प्रिपरेशन तो स्टार्ट होनी है 11th-12th में जाके। 11th में फर्स्ट एग्जाम की और 12th में दूसरे एग्जाम की, राइट। अब इनके लिए जो बुक्स का सिस्टम है, देखिए एनसीईआरटी ने 9th, 10th, 11th, 12th में बुक के साथ साथ एक एक्स्ट्रा बुक दी हुई है, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स पर्टिकुलरली कंसिस्ट ऑफ दोज क्वेश्चंस जो बच्चे को इधर की तरफ ले जाते हैं, तो वो बताएंगे इस एग्जाम्स को कैसे क्वालिफाई करें, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैटर को आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो केवीपीवाई का एग्जाम क्लियर करने में दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया केवीपीवाई के बारे में। स्टार्ट आपको बता दिया, व्हेन द प्रिपरेशन इज गोइंग टू स्टार्ट, व्हाट इज द सिलेबस, ठीक है, एंड हाउ स्टूडेंट। अभी एक चीज रह गई है बेसिकली, मैंने ओलंपियाड मैथ्स की तो बात करी, क्या ओलंपियाड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में भी होता है? फिजिक्स का ओलंपियाड भी होता है, केमिस्ट्री का ओलंपियाड भी होता है, बायो का ओलंपियाड भी होता है, इवन एस्ट्रोनॉमी का ओलंपियाड भी होता है। अब ये ओलंपियाड्स कब देने चाहिए बच्चों को? ये देने चाहिए 12th में जाकर। तो ये 12th में क्यों और वो 10th में दिलवा रहे हो आप? एक्चुअली इनमें 12th का सिलेबस ही आता है, 12th तक का सिलेबस आता है। तो अगर पहले देगा स्टूडेंट तो उसको उतना बेनिफिट नहीं होगा, राइट। तो मैंने इन ब्रीफ आपको बता दिया ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई के जो एग्जाम्स हैं, इनकी प्रिपरेशन बच्चा कब स्टार्ट करे और कैसे स्टार्ट करे। अब आ जाता है मेरा एक छोटा सा सजेशन। देखिए मैं ये चाहता हूं, आई पर्सनली फील कि कम से कम इन एग्जाम्स के लिए आपको बच्चे की ट्यूशन नहीं लगानी। ट्यूशन लगाने से फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा होगा। हम चाहते हैं हमारे बच्चे की एबिलिटीज इंप्रूव हो, थिंकिंग एबिलिटी भी इंप्रूव हो, कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी भी इंप्रूव हो और विजुअलाइजिंग एबिलिटी भी इंप्रूव हो। अगर हम चाहते हैं इन एबिलिटीज में इंप्रूवमेंट आए तो प्लीज नो ट्यूशन। तो बच्चा प्रिपेयर कैसे करे? बच्चे को गाइडेंस चाहिए। बेस्ट इज दे कैन गेट दी हेल्प ऑफ द रिस्पेक्टिव टीचर, जहां भी पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिस टीचर के पास पढ़ रहे हैं, वहां से वो गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है तो मैं क्या करूंगा, YouTube पे भाई आपको इस टेस्ट के लिए कैसे पढ़ना है। इनफैक्ट जो लेक्चर्स हम अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, आई विल मेक देम अवेलेबल ऑन द यूट्यूब फ्री ऑफ चार्ज। तुम कहोगे फ्री ऑफ चार्ज दे रहे हो, तो मैं तो बन गया सीनियर सिटीजन। 90s में पढ़ाया, 2000 में पढ़ाया, 2010 में पढ़ाया, अब तो 2020 आ गया। आई एम ए सीनियर सिटीजन, तो नेचुरल है कुछ बच्चों के साथ भी हो जाए, तो मैं उनको ये फ्री लेक्चर्स ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई के प्रोवाइड कर सकता हूँ, जिसमें से एनटीएससी के बेसिकली कोई लेक्चर्स नहीं होते। मैंने आपको बता ही दिया, मेंटल एबिलिटी पढ़ाई नहीं जाती, राइट। तो ये लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल करा दूंगा, आप आरएन क्लासेस के अंडर यूट्यूब से देख सकते हैं। ऑल राइट, तो दिस मच आई कैन डू। एंड फाइनली इन द एंड मैं एक चीज चाहता हूं, आपका बच्चा 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम डेफिनेटली क्वालिफाई करे, चाहे वो IIT JEE हो, चाहे वो एग्जाम नीट हो, चाहे एम्स हो, चाहे क्लैट हो, चाहे और कोई कंपटीशन हो, वो डेफिनेटली क्वालिफाई करे, राइट। बट उसके साथ साथ बच्चे को
राइट डायरेक्शन में बढ़ना है, मतलब सक्सेस मिलनी चाहिए। नहीं, सक्सेस की जगह मैं बेटर वर्ड यूज करूंगा, ही शुड एस्पायर फॉर एक्सीलेंस इन लाइफ, शुड एस्पायर फॉर एक्सीलेंस इन लाइफ, तो उसकी तरफ बच्चे को बढ़ना है। ठीक है, तो दिस इज द पर्पज कि बच्चा अगर इन एग्जाम्स की तरफ इंक्लाइंड होता है तो उसको मेनी फोल्ड फायदा हो। ओके देन, थैंक यू।